Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, that is motion, which is 8th chapter of your textbook, and this comes under the portion of physics. Okay, you already have learned many things about motion, and you know the general definition of motion, which is movement. Motion means movement. Okay, so let's have some basic introduction of motion. So whenever you look around yourself, you are sitting at your home, you are sitting in your room. So whenever you look around, you look outside, so you will see many of the things which are at motion, right? For example, if you see birds, so birds are flying, they are in motion. If you see you know some object, you will definitely found some of the objects which are at rest, you will find some of the objects which are at motion, right? And if you see a lake, pond, many of the aquatic animals, they are moving. Fish, they swim. Moreover, the blood in our body, that also flows through our veins, so that is also in motion. We know that atoms, molecules, planets, stars, galaxies, all of them are in motion. Okay, so we often perceive an object to be in motion when its position changes with the time. Okay, whenever an object it changes its position with respect to time, so we will say that this object is in motion, right? So you can for example, if you have to see the motion of an air, okay, so what you will see, how will you observe? If you see with the direction of the particles, you will see that this air is in motion. When you see that leaves of a tree which are in motion, so with the direction of leaves, you can see that in which direction the air is blowing. Okay, so many of the, that in our solar system, all of the planets, they are also in motion. Okay, so motion means movement. You come across with many things which are at rest and which are at motion. So what actually motion is? Motion basically is a very complex thing. Most of the motions are very complex. For example, if you are sitting in a train, moving train, I must say. So if you are sitting in a moving train, you will found, if you look outside the window, you will see that most of the things, whether they are trees, other vehicles, you found them, all of them are moving, but you find that you are sitting in the train, but you find yourself at rest. The person beside you, you find that this person is at rest, and all the things outside your train, they are seems to be in motion. But for a person who is outside the train and who is observing that train, for him, he is at rest and train is in motion. Okay, so many of the concepts are there which give a complexity to this concept. Okay, so we will see one by one all of them. Okay, so some there are many types of motions. Okay, so one by one we will discuss them. Okay, so let's describe motion. Motion is a change in position of a body with time. Motion can be described in terms of distance moved or distance displacement. Okay, motion can be described in terms of distance moved or in terms of displacement. Okay, so before going to distance moved and displacement, let's see that I'll make you more clarity with this thing. Suppose एक हम बात करते हैं कि दैट अगर आप अपने घर पे हो, तो आप बोलते हो कि मेरा जो स्कूल है, ठीक है, मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर है, ठीक है, या फिर आप बोलते हो कि वो सोसाइटी है, उस सोसाइटी से या फिर मोटेरा आप बात करो, तो मोटेरा से स्कूल का डिस्टेंस दिस मच है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप कभी भी जब आप हम लोगों को किसी चीज़ का बताना होता है कि वो इतना है या इतना है, तो हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप बोलो, आप कहीं भी जगह पे खड़े हो और आप सिंपली ऐसा बोलो कि साकार स्कूल 1 किलोमीटर है, देन दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है। साकार स्कूल 1 किलोमीटर व्हाट, आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा कि कहाँ से वो 1 किलोमीटर है। मेरे घर से है, न्यू सिटी रोड से है,
या फिर गांधीनगर से है, चांदखेड़ा से है, यू नीड टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, वेन एवर यू डिस्क्राइब द प्लेस, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आपको वो बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है, तो उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, आप किसी भी चीज़ को बिना रेफरेंस पॉइंट के मेंशन नहीं कर सकते। अगर आपको बोलना है कि मेरी सोसाइटी 4 किलोमीटर है, लेकिन आपकी सोसाइटी 4 किलोमीटर से कहाँ से? आपके स्कूल से, आपके फ्रेंड के घर से, पर्टिकुलर मार्केट से, या पर्टिकुलर प्लेस से, चांदखेड़ा से है, या फिर न्यू सिटी रोड से है, या जनता नगर से है, मोटेरा से है, ठीक है, गांधीनगर से है। सो यू हैव टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर दैट योर होम इज़ दिस मच अपार्ट। सो दिस रेफरेंस पॉइंट इज़, अब अगर हम बात करेंगे, जब मोशन की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो ओरिजिन बात करेंगे, ओरिजिन मीन्स रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसका मोशन को मेजर करना स्टार्ट करते हैं, उसके मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी हैव टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो वी हैव टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, ओके। सो अब आता है डिस्टेंस मूव्ड। डिस्टेंस मूव्ड इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाई अ बॉडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हम लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से अपना स्टार्ट किया, ये कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया है, ठीक है। ये ए पॉइंट में ले लेती हूँ और ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से वो चला तो वो ऐसे 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 करके गया और यहाँ बी पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेके बी तक, ये पूरा लाइक दिस, ये पूरी लेंथ जो है डिस्टेंस की, दिस इज़ नोन एज द डिस्टेंस। ये पूरी लेंथ जो उसने कवर करी है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से ये ए से बीच तक पहुँचने का शॉर्टकट क्या है, तो आप सीधा मुझे बोलोगे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दो, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये शॉर्टकट डिस्टेंस होगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कोई भी दो इनिशियल, ये इसको अगर मैं इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको फाइनल पॉइंट, बिकॉज इट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंड दिस जर्नी एट दिस पॉइंट। सो दिस डिस्टेंस इज known as the displacement, and the total length of the distance, this path is known as the distance. Got it? Now see, distance is the actual length of the path which is traveled by a body, and displacement, this is the length of the shortest path traveled by a body from its initial position to the final position. Okay, the same example is given in your textbook. For example, if a body starts moving in a straight line from origin O. अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मोशन जो होता है वो बहुत तरह से हम लोग उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी जो हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन को अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मोशन जो है इसकी टाइप्स होती है, सर्कुलर मोशन भी होता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन भी होता है। तो अभी जो हम बात करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हम स्ट्रेट मोशन विच इज़ द सिंपलेस्ट मोशन, ठीक है। हम क्या कंसिडर करेंगे इस केस में, दैट इफ़ अ बॉडी स्टार्ट मूविंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन ओ, यहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, एंड मूव्स थ्रू सी, मतलब सी से होके बी से होके इट रीचेस ए, तो यहाँ पे वो रीच करती है। देन मूव्स बैक, यहाँ से वापस आती है, एंड रीचेस सी थ्रू बी, और कहाँ तक पहुँचती है, सी तक, बी से होते हुए वो सी पॉइंट तक पहुँचती है, ठीक है। देन डिस्टेंस ट्रेवल, अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है हमारे पास, यू कैन सी इट्स 60। फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आई, तो ये टोटल अगर आप काउंट करोगे तो दिस विल बी 35। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 60 + 35 विच इज़ इक्वल्स टू 95, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फाइनल
माइनस इनिशियल, जो उसकी फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सी उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, दैट वाज ऑन सी पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज 25 and initial position 0 to 25 minus 0 which is equals to 25. So displacement और distance इन दोनों में ये फ़र्क रहता है, ठीक है। So distance is the total length of the path and displacement is the shortest distance, ठीक है। Next comes the uniform motion and non-uniform motion, ठीक है। अब इस केस में certain things हैं, because in PowerPoint presentation we cannot cover all the things. So before understanding this uniform motion and non-uniform motion, let's have a look on one more concept, which is magnitude. So you might have studied about magnitude in 8th standard, but even then let me tell you what this magnitude is. So magnitude means जो भी हम numerical value, कभी भी हम distance को travel करते हैं तो we denote with a number. We give a numerical value to this. We never say that मेरे घर का distance बहुत ज़्यादा है ना, मेरे घर का distance कम है या medium है, हम लोग उसको एक numerical value देते हैं. So we describe the motion always in numbers, ठीक है. So जो डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग नंबर से स्पेसिफाई करते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है. तो उसको हम जनरली आगे आप देखोगे कि हम लोग उसको मैग्नीट्यूड से भी डिफाइन करेंगे. तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, वो देखेंगे हम लोग, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है. तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड. जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से जा रही है, आप अगर बोलो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या फिर उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो 20 मीटर पर सेकेंड, इसमें 20 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है वी डिड नॉट हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया. तो मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, बहुत सारे बाद में बहुत बार ये टर्म यूज़ होने वाली है, विच इज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो अब इसमें क्या है, हम लोगों ने मोशन का पढ़ा सिंपल, दैट इज़ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अब हम पढ़ेंगे इसका टाइप की यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. वैसे तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाती है ये चीज़, ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल, आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है. तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ ये मैं अगर आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ तो मैं इसको एग्जांपल लेती हूँ कार का, बिकॉज वी यूजुअली ट्रैवल थ्रू आवर व्हीकल्स, तो उससे आपको क्लैरिटी होगी कि सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है या एक कार है, ठीक है, उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, ठीक है. सपोज़ अहमदाबाद से उसको मेहसाना जाना है, ठीक है. तो अहमदाबाद से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो उसने फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए कितना, फॉर एग्जांपल अपनी कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं कि अपनी 5 किलोमीटर्स के लिए उसने 1 आवर लिया, ठीक है. फिर फर्दर उसने 5 किलोमीटर के लिए, फर्दर उसने जो 5 किलोमीटर ट्रेवल किए उसके लिए भी उसने 1 आवर लिया. फर्दर वो उसने नेक्स्ट 5 किलोमीटर लिए तो उसमें भी उसने 1 आवर लिया. तो इसी तरह से उसने अपनी इनिशियल जर्नी से फाइनल जर्नी तक, ठीक है, जो हम लोग 5 किलोमीटर का ले रहे हैं, तो उस इंटरवल को उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया. तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि जिसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल है और टाइम इंटरवल है वो इक्वल रहता है. अगर हमने, जैसे हम लोगों ने टाइम इंटरवल लिया है 1 आवर का, तो डिस्टेंस हमने ले लिया 5 किलोमीटर का, तो हर एक 5 किलोमीटर के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर. अगर ये सीक्वेंस मेंटेन रहती है तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. तो इससे उल्टा दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो उससे उल्टा हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. तो
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हमने पहले 1 आवर में आपने सपोज़ 5 किलोमीटर किया, नेक्स्ट के 1 आवर में आपने 10 किलोमीटर कर लिया, नेक्स्ट के 1 आवर में आपने सपोज़ 20 किलोमीटर कर लिया। तो आपका इंटरवल जो हम लोग इक्वल इंटरवल ले रहे हैं हम लोग, उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो इक्वल नहीं है, विच इज़ अनइक्वल। तो इस तरह का जो मोशन होता है विच इज़ नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जनरली वेन एवर वी मूव वी नेवर मूव विद द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यू नो दिस। कभी हम 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कभी कम भी करते हैं, कभी हम ज़्यादा भी कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है हमारे पास मोशंस होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आता है हमारे पास स्पीड, ठीक है। स्पीड बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट है हमारे पास। स्पीड को जब हम टाइम के साथ, कोई भी बॉडी है जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जो मोशन में होती है, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब हमने उस डिस्टेंस को एसोसिएट कर दिया टाइम के साथ, ठीक है, कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया। जैसे मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन में आपने सिर्फ एक चीज़ की बात करी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से फिर वापस वो सी तक आया, हमने नहीं कंसिडर किया कि इसमें टाइम कितना लिया, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको टाइम के साथ एसोसिएट कर दिया इस डिस्टेंस को, तो वो उसके बाद जो निकल के क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। इफ़ ए बॉडी the speed of a body is a distance traveled by the body in unit time, ठीक है। तो वो हो जाता है उसका स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s in time t, then its speed v is v equals to s upon t, ठीक है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो क्या हो जाती है उसकी स्पीड। और अब कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, द सही यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम जनरली मीटर पर सेकेंड में प्रेजेंट करते हैं। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड में और देखोगे आप बाद में डिस्प्लेसमेंट में, ये एवरेज स्पीड है या वेलोसिटी, उसमें क्या फ़र्क रहता है। स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस आपको देखना है। एवरेज स्पीड और स्पीड जो है दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। स्पीड जो है हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि यहाँ पे हम सिर्फ स्पीड देख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे अगर आपकी इफ़ यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 जो है ये हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। ये हमको सिर्फ वैल्यू बताता है, स्पीड हमको सिर्फ वैल्यू बताती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन तो जो चीज़ हमको वैल्यू बताती है उस तरह की क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड बताती है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो हमको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताती हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। बट स्पीड जो है विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करें एवरेज स्पीड की। सो एवरेज स्पीड इज़ अ रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। वहाँ पे हमने बात करी यूनिट टाइम। अब कितना एक ऑब्जेक्ट में ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, और कितना उसने टोटल टाइम लिया है, वो होता है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अब आता है हमारे पास स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। जब यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने एवरेज स्पीड को डायरेक्शन के साथ अभी एसोसिएट नहीं किया है। इसको बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तब हम इसको एसोसिएट करेंगे डायरेक्शन के साथ, ठीक है। सो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट टाइम के साथ है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो है उसकी स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड में क्या है, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है और जो उसने टोटल टाइम लिया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, वो हो गया उसका एवरेज स्पीड, ठीक है। सो आपको अभी तक इतना ही रीड करना है। स्पीड विद डायरेक्शन ही हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको इसमें ये तभी समझ आएगा जब आपको ये स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर समझ में आया है तो, ठीक है। तो इसको गो थ्रू हो जाना, अच्छे से समझ लेना, देन वी विल मूव टू द वेलोसिटी।